तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना तो इस एनालॉजी को देखो. देर आर 1% थिंग्स इन द वर्ल्ड विच यू नो, 1% थिंग्स इन द वर्ल्ड विच यू डोंट नो, एंड द रेस्ट 98% आर द थिंग्स विच यू डोंट नो. अगर तुम्हें ये बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आई तो मैं इसमें एंड में आऊंगा. सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. प्रखर के प्रवचन इस चैनल विच इज रन बाय प्रखर गुप्ता, जिसको मैंने रॉ एंड रियल के पॉडकास्ट से देखा था. And apart from all the good work that he has done by guiding people, by motivating people, there is one aspect of life where he feels people to guide. And in the process of guiding people into that field, वो उन्हें mislead कर देता है. Again, इस वीडियो को इंटेंशन ये नहीं है कि मैं प्रखर को हेट करूँ. तो प्रखर by any chance you're watching this video, it's not my intention to hate you. It is just that कि we all are imperfect और it is good to improve every time. तो यहाँ पे सॉर्टेड आउट सम क्लिप्स, ठीक है, और काफ़ी सारे क्लिप्स थे बट मैंने 3-4-5 ही शॉर्ट आउट करे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती. तो यहाँ सॉर्टेड आउट सम क्लिप्स और मैं एक एक करके उस पर रिएक्शन दूंगा. ट्राई टू क्लैरिफाई कि क्या चीज़ें खराब है एंड वेयर इज लैकिंग एंड व्हाट इज द लैक ऑफ परसेप्शन दैट ही इज हैविंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, राइट. तो पहले क्लिप तुम देखो, उसके बाद आई विल कम बैक. I would consider religion to be a subset of spirituality or something that runs parallel. I don't know Bro, if that's right. what the fuck? मतलब No. parallel. देख, I mean it's a little overlap हो सकता है. confusing. हाँ It's a वही. little नहीं, नहीं, It's overlap confusing है. for me. It's confusing for me. तभी मैं पूछ रहा हूँ. Religion, spirituality. हाँ ठीक है हाँ. It's not the other way Yeah, around. yeah, So it's not the superset other is religion, and not the other way I mean around. that. सो मैंने नहीं बिल्कुल बेसिक क्लिप से स्टार्ट करी है. मेरे वेदांत टॉक्स अबाउट कि रिलीजन इज अ सुपरसेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी और एंड रिलीजन रन्स पैरेलल. वेब प्रखर टोटली डिस्कार्ड्स दिस आइडिया एंड ही सेज कि नो, अगर रिलीजन ये है तो स्पिरिचुअलिटी ये है, which is a very wrong idea. The fundamental idea of spirituality is to raise your consciousness. Now, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना. This is coming from a person जो काफी टाइम से मेडिटेशन करता आ रहा है. Obviously, it's not about the quantity, it's about the quality. But still, just to make you sure कि मैं कुछ ऐसे फालतू की बातें नहीं कर रहा. I do meditate, I do have experienced things. That's why I have some understanding of these things. Now, when Prakhar says कि religion is this and spirituality is this, he is missing out the very fundamental condition of what spirituality is. So spirituality is just raising of your consciousness, जो किसी भी वे से हो सकती है. You need not to be religious in order to be spiritual. I am not a religious person, but I am a heavily spiritual person. So what do I mean by this? अगर spirituality ये है तो religion ये है. Because there can be many ways to be spiritual. There can be many ways to raise your consciousness. There can be a hell lot of ways to raise your consciousness. वो कैसे भी हो सकती है. If you're conscious enough, every activity is a sadhana. Hence, every activity is spiritual. तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, that can be spiritual activity. तुम खाना खा रहे हो, that can be spiritual activity. तुम पानी पी रहे हो, that can be spiritual activity. और खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, you don't need to be religious. तो ये जो आइडिया है ना कि ये जो रिलीजन है वो स्पिरिचुअलिटी का बड़ा पार्ट है, इज वेरी रॉन्ग. इट इज फंडामेंटली रॉन्ग. इसके फंडामेंटल से टोटली रॉन्ग है. अगर मैं इस बात को बोलता हूँ कि रिलीजन बड़ी है, स्पिरिचुअलिटी छोटी है, दैट मीन्स कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि देयर आर मेनी थिंग्स इन रिलीजन जो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. Every part of religion is spirituality. Hence, spirituality is a superset of religion and not the other way around. तो ये जो फंडामेंटल आइडिया है ना, इसे हमें समझने की नीड है, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे. और दैट इज द रीजन कि भाई मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर क्लिप से स्टार्ट करी. बिकॉज अगर तुम्हारे फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू ग्रास्प कि मैं आगे के वीडियोस में क्या बोलने वाला हूँ. तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे के क्लिप पे. बट इसको नोटिस करो यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है कि जितने बाबा गुरु बनते हैं इवेंचुअली आश्रम खोल लेते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि उन आश्रमों में लोग जाके बैठ जाते हैं, और फिर ऐसा क्यों होता है जो आश्रम में लोग जाके बैठते हैं वो अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के आश्रम में ही बैठ जाते हैं. गांधी तक ने आश्रम क्यों खोला? इन सबके अलग आश्रम क्यों होते हैं? क्योंकि वो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि हमें अपनी इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल सराउंडिंग इंसुलेट करनी पड़ेगी इस तरीके से कि ये आइडियाज काम कर. तो इस क्लिप में ना प्रखर सेज कि ये जितने भी बाबाज होते हैं, जितने भी साधु होते हैं, वो अपने आश्रम बनाते हैं बिकॉज इनके जो आइडियाज होते हैं, जो ये बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी अप्लाइड इन द रियल लाइफ. वेरी रॉन्ग आइडिया. सी, देयर आर मेनी पाथ्स टू अचीव द अल्टीमेट गोल. देयर आर मेनी वेज. अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा वे चूज करते हो. बहुत सारे लोग होते हैं जो गृहस्थ योगी होते हैं, जो अपने घर पे बैठ के ही ये चीजें करते हैं, दे अचीव द गोल, राइट. हाँ, मुश्किलें होती है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन. उनको कोई फोर्स नहीं करता कि तुम आश्रम में जाके बैठो. वाई पीपल डू दैट? बिकॉज इट ऑन देम कि तुम भाई कौन सा वे को अडॉप्ट करते हो. इफ फॉर मी, आई वॉन्ट टू अडॉप्ट एन
ईजियर वे देन मैं उनके आश्रम में जाके बैठूंगा, बट इट डज नॉट मीन कि अगर मैं उनके आश्रम में जाके नहीं बैठूंगा तो इट कैन नॉट बी फ्रूटफुल फॉर मी, इट कैन 100% बी फ्रूटफुल फॉर मी, वो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अचीविंग दैट गोल। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम उनकी बातों को सुनेंगे तो वो तुम्हारे रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होगी। दैट इज वेरी मच एप्लीकेबल, आई हैव बीन अप्लाइंग देम इन माय लाइफ फ्रॉम पास्ट 3-4 इयर्स, बिकॉज वो चीज़ एक्सपीरियंशियल बेस्ड है। तुम किसी चीज़ को वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रेट कर लोगे तो वो चीज़ रॉन्ग हो जाती है, तो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा आश्रम में जाके बैठता है, वाई? बिकॉज ही नीड्स कि ठीक है मुझे एक ईजियर वे चाहिए टू अचीव दैट थिंग, इट चूजेज दैट लाइफ। पर ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने घर पे बैठ के इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे आर सीइंग कि उनकी लाइफ में क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग आइडिया कि ये आश्रम खोल के इसलिए बैठते हैं क्योंकि इनका जो आइडिया है वो रियल या प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। दीज आइडियाज आर वेरी वेरी मच एप्लीकेबल, बट यू नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। तुम्हें अपनी मेडिटेशन के साथ, तुम्हें अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, यू नीड टू कॉन्टिन्यूसली पंप अप योर स्पिरिट, तभी तुम इन पे जा पाओगे। जब तुम किसी आश्रम में जाते हो तो दैट गाइडेंस बिकम्स ईजियर, बट इट डज नॉट मीन कि आउटसाइड द आश्रम दीज थिंग्स आर इम्पॉसिबल। दीज थिंग्स आर डेफिनेटली पॉसिबल। हजारों लोगों ने किया, मैं भी करता आया और मैं भी करूंगा। सो दैट वाज द सेकंड क्लिप। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड वन। बट तुम अभी करोगे वो सोच के जो तुम चाहते हो कल हो। सी नॉट सो मैं इसके लिए ना मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं। सो कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि ओशो सेज कि देयर इज नो टुमारो, एंड नाउ प्रखर इज सेइंग कि नो देयर इज अ टुमारो। ये आइडिया काफी फैंसीफुल है। ही सेज कि वी ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद टाइम, दैट इज कंप्लीटली फाइन, पर यू आर मिसिंग आउट द होल एसेंस व्हेन यू से कि ये आइडियाज फैंसीफुल है। इसका मतलब कि यू हैव नॉट अंडरस्टूड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ व्हाट ओशो हैज सेड। तो यहाँ पर उनका मतलब ये है कि नॉट आस्किंग यू कि तुम फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो, इज नॉट आस्किंग यू टू बिकम अ सन्यासी, ही इज आस्किंग यू कि थिंक अबाउट द फ्यूचर। तुम सोचो उसके बारे में, यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट योर फ्यूचर, बट यू नीड नॉट अलाउ द फ्यूचर टू टेक अ टोल ऑन यू। इनका मतलब ये है कि यू नीड टू हैव फ्रीडम इनसाइड यू। इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो यू नीड टू बी जस्ट कंसर्न, एंड यू डोंट नीड टू बी लाइक कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। यू नोट नीड टू बी टेंस्ड अबाउट योर फ्यूचर, क्योंकि अगर तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होते रहोगे, दैट इज रॉन्ग। बट ही इज आस्किंग यू कि ठीक है तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, बट डू नॉट अलाउ द फ्यूचर टू टेक अ टोल ऑन यू, डू नॉट अलाउ द फ्यूचर टू रूल यू, एंड दैट इज व्हाई ही सेज कि देयर इज नो टुमारो। ही इज टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंशियलिटी, कि एग्जिस्टेंशियली तुम्हारा फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये वो नहीं बोल रहे कि तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो। सोचो, बहुत सोचो, आइडेंटिफाई मत करो अपने आप को उससे। मतलब ऐसा नहीं कि तुम पूरे दिन भाई अगले बार क्या होगा, अगले बार क्या होगा, अगले बार क्या होगा सोच रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, बी कॉन्शियस, बट ऐसा रहो कि तुम फ्री रहो, हैव द फ्रीडम इनसाइड यू, विच इज वेरी मच पॉसिबल। क्योंकि जब तुम कहते हैं ना कि मेडिटेशन में ये चीज़ होती है कि तुम अपने माइंड को किसी एक कोने में रख के देख सकते हो, दैट इज ट्रू। तुम्हें उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम सोचना ही छोड़ दो। ऑब्वियसली दैट इज वेरी मच इररिलेवेंट और अनरियलिस्टिक, बट यू हैव मिस इंटरप्रेटेड हिज वर्ड्स, यू हैव इंटरप्रेटेड देम इन द रॉन्ग वे, एंड नाउ इस रॉन्ग वे को तुम अपनी बायोलॉजी से एक्सप्लेन करके बताओगे विद हैवी वर्ड्स, विच इज वेरी रॉन्ग। तो कुछ चीज़ें ना एक्सपीरियंशियल होती है, तुम ऐसे किसी चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट कट के बोलोगे तो दैट इज वेरी रॉन्ग। खैर इसके बारे में एंड में आएंगे, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लिप। बट है ना, मतलब ये तीन इंसान जो अभी स्क्रीन पे हैं, इनकी बॉडीज में डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है? ये सो नाउ इन दिस वीडियो ना सदगुरु सेज कि there are no boundaries which are existing between me and you, so we are creating that particular boundary। और ये मैं तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है सेल्फ एस्टीम और कंपटीशन के ऊपर। नाउ प्रखर सेज कि नहीं, ये फिजिकल बाउंड्रीज तो है ना हमारे पास, ये बाउंड्रीज तो है ना। Prakhar, my brother, you have interpreted this in the totally wrong way. It is not about physical boundaries. Please understand the question. She is talking about self-esteem. इसका मतलब ये कि self-esteem में physicality तो कोई आती ही नहीं है। जब हम स्टडीज में कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो वह मेंटल कंपटीशन की बात हो रही है। एंड सदगुरु इज टॉकिंग अबाउट मेंटल कंपटीशन, कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई मेंटल बाउंड्रीज नहीं है। जो भी बाउंड्रीज है वो हमारे थॉट्स की बाउंड्रीज है। जब हम मेंटल बाउंड्रीज की बात करते हैं तो हम एग्जिस्टेंशियली बात करते हैं, और एग्जिस्टेंशियली मैं हो, तुम हो, चाहे कोई भी बंदा, वो सेम है। एग्जिस्टेंशियली जो हमारी एनर्जी है वो वन है, वो हम सब सेम है। दैट इज वाई सेइंग कि ये जो बाउंड्रीज हमने क्रिएट कर दी ये आर्टिफिशियल है, दीज बाउंड्रीज आर नॉट ट्रू। और अगर तुम बात करो कि नहीं यहाँ पे फिजिकल बाउंड्रीज तो है,
तो ये बंदा तो रॉन्ग है, तो नहीं, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर फिजिकल बाउंड्रीज की बात ही नहीं हुई. इट इज कॉमन सेंस नो, कि अगर तुम बात करते हो कि कंपटीशन की, तो वहाँ पर फिजिकलिटी की तो बात ही नहीं है. तो तुमने तो इस चीज़ को पूरा ही उल्टा इंटरप्रेट कर लिया. एंड दैट इज वाई एम सेइंग कि यार ये जो लैक ऑफ परसेप्शन है ना, एक एक चीज को पार्ट बाय पार्ट करके बोलने का, इट इज रॉन्ग. यू नीड टू हैव एन होलसम आइडिया ऑफ कि क्या चीजें हो रही है. खैर यार, ऐसे तो बहुत क्लिप्स है, मैंने इतनी चीजें देखी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैंने तुम्हें ये 3-4 क्लिप्स दिखाई और इसके अंदर की जो फैलेसीज थी, जो रॉन्ग चीजें थी, मैंने तुम्हें वो बताई. नाउ व्हाट इज माय पॉइंट है, तक मैंने एनालॉजी की बात करी थी ना कि देयर आर 98% ऑफ द थिंग्स व्हिच यू डोंट नो. ये स्पिरिचुअलिटी उस 98% में आती है. हमें नहीं पता ये चीजें क्या है. 1 2 3 4 5 6 साल मेडिटेट करने से वी डोंट नो. स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना, ईदर यू आर ऑन दिस साइड, नॉट एनलाइटेंड साइड, और यू आर ऑन दैट साइड. ईदर यू आर एनलाइटेंड और यू आर नॉट एनलाइटेंड. ओनली एनलाइटेंड पर्सन जिसको वो चीज मिल रखी है, ओनली ही कैन एक्सप्लेन दैट थिंग, वरना बाकी के लोग हम सब सीख रहे हैं यार. तो यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी को वर्ड्स बाय वर्ड्स, बिट्स बाय बिट्स को पीस के अपने इंटेलेक्ट से इतने वर्ड्स को लिटरली इंटरप्रेट करना इज रॉन्ग. एक होलसम आइडिया होना चाहिए. इसी प्रकार आई एम सॉरी बट नाम के आगे प्रवचन डाल देने से यू डोंट बिकम अ गुरु. फॉर बिकमिंग अ गुरु यू नीड टू हैव दैट एनलाइटनमेंट. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि तुम फिर अच्छी बातें लोगों को बता नहीं सकते हो, पर अगर तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सेंसिटिव फील्ड. अगर तुमने उसके बारे में कुछ चीज रॉन्ग बोल दी एंड लोग जो तुम्हें फॉलो करते हैं उन्होंने उस बात को समझ लिया, तो दे कुड एंड अप डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुम स्पिरिचुअलिटी को प्रीच करते हो इज टू मेक पीपल क्लियर अबाउट द आइडिया ऑफ फंडामेंटल स्पिरिचुअलिटी, जो मैंने पहले क्लिप में बोली, विच आई फाइंड रॉन्ग इन यू. तो दैट फंडामेंटल तुम्हें लोगों को ये बताने की नीड है. क्योंकि क्या तुमने अपना कमेंट सेक्शन कभी जाके देखा है, वहां पे लोग झगड़ा करते रहते हैं कि सतगुरु सिट, ओशो सिट, वो गुरु बेटर है, ये गुरु बेटर है. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि एवरी स्पिरिचुअल गुरु इज वन एंड द सेम, एंड द टाइम यू कंपेयर two spiritual gurus you are not at all spiritual. And प्रखर again one request, please stop being arrogant. मैंने ये जो कमेंट जो अभी तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है, मैंने जब उसका रिप्लाई देखा था, that was the only motivation for me to make this video. क्योंकि यार तुम इतने arrogant हो कि अगर कोई बंदा तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है तो तुम उसे ये बोल रहे हो कि तुम ये कंटेंट नहीं समझे. What the hell is this? You cannot talk like that, right? It is an open platform and if you are talking about spirituality you need to be open. तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे को लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो it is very much fair. So guys, देखो अगेन ऑल द गुड वर्क जो तुम तीनों कर रहे हो, श्वेता, वेदांत एंड प्रखर, दैट इज awesome, like really awesome. But please do not mislead people about spirituality. बहुत sensitive area है, यहाँ पर अगर लोगों को कुछ misleading हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है. So guys, please make sure कि तुम लोग थोड़ा improve करो यार. Spirituality is not about western philosophy. तो तुम अपने बायोलॉजी के वर्ड्स यूज करके spirituality को बिट्स एंड पीसेस में अगर काटना स्टार्ट कर दोगे तो इट वुड लाइक सब कुछ बेकार ही हो जाएगा. मैंने वो 46 मिनट की जो प्रखर की सदगुरु की वीडियो है, आई कैन पॉइंट आउट अ हेल लॉट ऑफ fallacies in that video, but ठीक है, मैं बोल नहीं रहा बिकॉज बहुत चीजें यार. माई पॉइंट इज नॉट टू हेट हिम, माई पॉइंट इज टू मेक हिम रियलाइज कि यहाँ पर एक ब्रॉडर परसेप्शन है जो हमें समझने की नीड है. ठीक है, तो मेक श्योर कि यार तुम इस बात को समझो. मेक श्योर कि दिस वीडियो रीचेस आउट टू प्रखर. अगर तुम उसको फॉलो करते हो तो तुम्हें भी ये बात बहुत समझने की नीड है. सो गाइस, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एंड बाय.